Hello dear students, in this video we are going to study about the electromagnetic effect. So this is one of the effect of electronic effect. So what is electronic effect? It is the effect due to the transition of electrons. As you already know, there are four types of electronic transitions. Transition effect, that is, one is the inductive effect, second is electromagnetic effect, third one is mesomeric effect, and fourth one is the hyperconjugation. In this video we are going to study electromagnetic effect in detail. So this electromagnetic effect is a temporary effect and the remaining three effects are the permanent effect. So why this one is temporary, we will see in this video. Okay, so first of all we have to study about we must know about electromagnetic effect. So this effect is produced in multiple bonded compound due to the approach of reagent to that compound, and due to this polarity is produced in that multiple bonded compound. Polarity मतलब उसमें क्या हो जाएगा, चार्जेस डेवलप हो जाएंगे और कंप्लीट चार्जेस डेवलप हो जाएंगे. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इंडक्टिव इफेक्ट दैट ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट partial charges develops on the atoms, but here in this case complete charge will develop because there is complete transfer of a pi bond towards one of the bonded atom. किसी एक एटम की तरफ एक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा और कंप्लीट ट्रांसफ़र होने की वजह से उन पर कंप्लीट चार्ज डेवलप होगा, ना कि पार्शियल चार्ज. ठीक है, तो कहाँ पर ये इफ़ेक्ट हमें दिखेगा, हमें किस में दिखेगा? मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स में. Generally, this effect occurs during the substitution reaction. Okay, so substitution reaction, whenever we use a reagent, whether it is an electrophile or nucleophile, we can see this effect. Okay, so what is your electrophile and what is a nucleophile? For time being, you just remember this, that electrophile are electron deficient species and nucleophiles are the इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट दैट मीन्स उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. यूँ समझ लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन ढूंढते रहते हैं. ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल्स मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स चले जाएंगे. ठीक है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांसेस रहेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल चले जाएंगे. इतनी बात समझ में आ गई. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में. तो जनरली जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, so you must know about this double and triple bond. The first bond formed between any two atoms is a sigma bond. The second bond and the third bond formed between the same two bond are referred as the pi bonds. Okay, जब दो एटम्स के बीच में दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे, तो पहला बॉन्ड जो फॉर्म होता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और उन्हीं दो एटम्स के बीच में जो दूसरा बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, तो होता क्या है इस इफेक्ट में? दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स गेट शिफ्टेड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम and due to the shifting of pi electron, complete charge will develop on that electron, and that complete charge is the negative charge. As the complete bond shifts towards that atom, that means a negative charge will develop on that atom. Okay, and what will happen to the other atom? Obviously complete positive charge will develop on that atom. Okay, so we will see this with some example. Before that, we have to see the types of electromagnetic effect. So there are two main types of electromagnetic effect, and these are the positive effect and the positive electromagnetic effect and the negative electromagnetic effect. So we will see one by one these two effects. What is positive effect, positive electromagnetic effect, and what is negative electromagnetic effect. So when plus E effect occurs, it occurs when the electron pair of pi bond is moved towards the attacking reagent.
So here attacking reagent is an electrophile. इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रोफाइल इज द स्पेसीज विच इज डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कमी है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या हो जाएगा, जो मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है जिस पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, उसके पाए इलेक्ट्रॉन्स या पाए बॉन्ड उस रिएजेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है, और उनके बीच में फिर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ओके। तो ये एक अल्कीन है, दिस इज एन अल्कीन। सो व्हाई दिस इज अल्कीन? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम। So this is an example of symmetrical alkene. Okay, we are seeing this general reaction. So in this reaction, this alkene is reacting with this reagent in which this H plus, that is hydrogen ion, okay, इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन is an attacking species or it is a reagent. So plus charge, what this plus charge denote? It is डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की। सो व्हाट विल हैपन, दिस वन ऑफ दिस डबल बॉन्ड गेट शिफ्टेड टूवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस H प्लस। जैसे ये H प्लस आ जाता है, उसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब जो कि ये सिमेट्रिकल है तो उसमें कोई देखने की वजह नहीं है कि कौन से कार्बन की तरफ जाएगा, दोनों सेम टाइप के कार्बन है, तो किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन, सो नेगेटिव चार्ज विल डेवलप ऑन दिस कार्बन एटम एंड पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप ऑन दिस कार्बन एटम। सो हियर ड्यू टू द shifting of electron, this carbon becomes electron rich in, okay, and this hydrogen now get shift। अब ये क्या हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, ओके। तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, इस कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में। तो क्या हो गया यहाँ पे, पाई बॉन्ड, ओके, pi electrons gets attracted or get shifted towards the reagent। और ये reagent कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब विच इज डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वो डिफिशिएंट है, कम है, ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस ई इफेक्ट। क्यों प्लस ई इफेक्ट हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जा रही है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले देखा था। क्या देखा था हमने इस नोट्स में कि इफेक्ट अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड इज मूव टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस ई इफेक्ट, ओके। तो उसके बाद में हम देखते हैं माइनस ई इफेक्ट। क्या होता है इस माइनस ई इफेक्ट में? सो जैसे प्लस ई इफेक्ट में हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा न्यूक्लियोफाइल। सीधे सीधे हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में क्या होता है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये है न्यूक्लियोफाइल, साइनाइड ग्रुप आपको देख रहा है जिस पर निगेटिव चार्ज है। लोन पेयर दिख रही है आपको, इलेक्ट्रॉन्स की 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है जिसका मतलब उस पर है निगेटिव चार्ज। तो ये ढूंढ रहा है ऐसी जगह जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी मिले ताकि वो जाके उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर ले। सो दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल। Now what will happen here, you can see a compound with carbonyl functional group, C double bond O group है, मतलब carbonyl group है। So due to the presence of this reagent, जैसे ये reagent add होता है, so what will happen in this compound, this bond get one of the bond get shifted towards the more electronegative atom।
So oxygen atom is more electronegative than carbon, that's why this bond is getting shifted towards the oxygen atom. Now what will happen? The negative charge will develop on oxygen and the positive charge will develop on carbon. So where is the electron deficiency? So here at the place of carbon the electron deficiency is here. So where this nucleophile will attack? Where it will attack on the positive species. Okay, that means this इलेक्ट्रॉन पेयर इस ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास शिफ्ट हुई है ऑक्सीजन के पास में, ये इस न्यूक्लियोफाइल से दूर है. ओके, सो इसकी डेफिनेशन जो होती है क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? सो इज ये निगेटिव इफेक्ट कब दिखेगा? इज जनरली ऑब्जर्व व्हेन द अटैकिंग रिएजेंट इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड pi electrons are transferred to the atom which is the attacking reagent will not bond with. Okay, तो pi बॉन्ड जो है किसकी तरफ जा रहा है? जिसके साथ न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा. ओके, मतलब अटैकिंग रिएजेंट से दूर जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन पेयर. The effect occurs when the electron pair of pi bond is moved away from the attacking reagent. So main difference क्या हुआ? प्लस E और माइनस E में. प्लस E में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड मूव टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, और माइनस ई में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड इज मूव्ड अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट. ओके, सो यहाँ पर ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है. तो ये यहाँ पर हमारा ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का कंसेप्ट कंप्लीट होता है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट. ओके, टिल देन बेस्ट लक.